Good morning, all my dear students. So, today we are going to talk about chapter number 15, which is structure and function of skin. So, first of all, a question arises. What is skin? So, as you can see, the whole body is surrounded by a layer, a outermost layer, and this is your skin, right? Now, if I talk about what is it an organ, a gland, or what? So the answer is that skin is an organ. Yes, you heard it right. Skin is an organ and it is the largest organ of your body. Now, if we talk about the area, right, the area the skin covers is 2.1 meter into 0.9 meters. अगर आप इसे फैला के स्प्रेड करके रखेंगे तो दिस इज द सरफेस एरिया इट इज गोइंग टू कवर, right? Now, if we talk about the definition of the skin, so skin is the outermost protective covering of the body which is stretched all over the body in the form of a layer. तो ये क्या करती है, हमारी पूरी बॉडी को कवर करती है और हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसका प्राइम फंक्शन है टू प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन. ओके, अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, सो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. आउटर पार्ट इज एपिडर्मिस and uske niche inner part is dermis. Here in this diagram you can see that this small little part is epidermis, the outer part, और उसके नीचे जो पूरा part है, thick portion is dermis. Okay, so epidermis and dermis are the two main parts of skin. Now if we talk about the epidermis, the outer part, so it is further divided into three layers. Okay, so the outer layer in that is cornified layer, also known as stratum corneum. Second, or the middle layer, is granular layer, and the third layer, that is the innermost layer, is Malpighian layer, also known as germinative layer. So these three are the sub layers of outer epidermis. Now if we talk about the cornified layer, so it is the outermost layer. So the skin which you are able to see right now, the outermost layer of the skin is cornified layer. Now it is made up of dead tissues. Dead tissues means they are not living. Every day they are shed off, right? जब भी आप नहाने बैठते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, काफी सारे thousands and millions of number of cell are shed off daily from your body, right? So they are the dead tissue and they are made up of a very special type of a protein called keratin protein. Now what is the function of the stratum corneum, right? So it has three main functions. First, to prevent mechanical damage. Second, prevents the entry of germs को अंदर नहीं आने देता है. And last, it reduces the water loss. हमारी surface से water loss ना हो जाए, evaporate ना हो जाए, वो भी cornified layer ही make sure करती है. Then second layer or the middle layer is granular layer. ये comparatively काफी thin होती है. It is very thin layer and it is the middle layer, right? और यही आगे बढ़कर cornified बनती है. टेक इट एज एग्जाम्पल, जैसे ये तीन मार्कर्स है मेरे पास, राइट? तो इससे आप समझो एक एपिडर्मिस की तरह. एपिडर्मिस में तीन लेयर होती हैं, कॉर्निफाइड, ग्रैनुलर एंड मैल्फिजन. सो टेक इट एज कॉर्निफाइड, टेक इट एज ग्रैनुलर एंड दिस वन एज मैल्फिजन और द जर्मिनेटिव लेयर, राइट? अब होता कैसा है कि एवरीडे बेसिस पर जो ऊपर वाली लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि जो कॉर्निफाइड लेयर है, वो शेड हो जाती है, यानी कि हट जाती है वो सेल, राइट? सो नाउ हु विल कंपेंसेट दैट? तो ये जो सेकेंड लेयर है, दैट इज योर ग्रैनुलर लेयर, राइट? ये उन्हें ऑक्यूपाई करती है, यानी कि ये अब चली जाती है ऊपर की तरफ और बन जाती है अब वो डेड लेयर, यानी कि कॉर्निफाइड बन जाती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि जो बीच में जो गैप आ गया है, राइट, हु विल ऑक्यूपाई दैट गैप? सो अगेन ये जो आपकी मैल्फिजियन लेयर है, राइट, ये जो मैल्फिजियन लेयर है ये एक्टिवली डिवाइड करती है. ये जो इनर मोस्ट जो थर्ड लेयर है ना, मैल्फिजियन लेयर, ये एक्टिवली सेल डिवीजन करती है और नए सेल बनाती है, और ये सेल फिट हो जाते हैं ये बीच का जो गैप है वहां. तो इस तरीके से फिर से तीन कंटिन्यूअस लेयर हो जाती है और इस तरीके से साइकिल चलती ही जाती है. ऊपर के जो कॉर्निफाइड है वो डेड है, एवरीडे बेसिस पे शेड होती रहती है. सेकेंड लेयर है ग्रैनुलर लेयर जो उसे रिप्लेस करती है
और उसके बाद लास्ट है मैल्फिजियन, ठीक है। सो मैल्फिजियन लेयर इज द इनर मोस्ट लेयर, ऑल्सो नोन एज जर्मिनेटिव लेयर। आई थिंक अब आपको पता चल गया है कि उसे हम जर्मिनेटिव क्यों बुलाते हैं, बिकॉज ये सेल डिविजन करके नए सेल गिव राइज करती है, इस वजह से इसे हम जर्मिनेटिव लेयर बुलाते हैं, ठीक है। सो ये एक्टिवली सेल डिविजन करके न्यू सेल ऐड करती जाती है, ओके। अब आपकी स्किन का जो कलर है, राइट, इस कलर के पीछे एक पिगमेंट होता है, सो द नेम ऑफ दैट कलर पिगमेंट ऑफ योर स्किन इज मेलानिन, राइट। ये मेलानिन पिगमेंट भी इसी लेयर, मैल्फिजियन लेयर में ही सिचुएटेड होता है, ओके। नाउ ये जो मेलानिन पिगमेंट है ये क्या करता है? सो मेलानिन पिगमेंट सबसे पहले आपको एक कलर देता है, स्किन का कलर देता है। मोर द नंबर ऑफ मेलानिन पिगमेंट द डार्कर विल बी दी स्किन, और अगर मेलानिन पिगमेंट्स कम होंगे सो योर स्किन कलर विल बी फेयर। मेलानिन का एक्चुअल रोल क्या है इस पिगमेंट का? एक तो है कि वो कलर देता है, दूसरा ये एक्ट करता है एज अ स्क्रीन अगेंस्ट यूवी रेडिएशन, यानी कि सन की जो अल्ट्रा वायलेंट रेडिएशंस है उसे वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होने से रोकता है, ठीक है, उसे हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता। अच्छा, तो ये मेलानिन पिगमेंट्स भी कहाँ सिचुएटेड है? These pigments are situated in Malpighian layer or the germinative layer, right? अब इससे लगती दो डिजीज दी हैं आपके टेक्स्ट बुक में, which is vitiligo and albinism. Now what is vitiligo, right? तो आपने देखा होगा कुछ लोगों की बॉडी के ऊपर काफी सारे व्हाइट कलर के पैचेस होते हैं, स्पॉट्स होते हैं, राइट। सो दिस इज ड्यू टू डिसपिगमेंटेशन और डीपिगमेंटेशन ऑफ सर्टेन सेल्स ऑफ देयर बॉडी, राइट, जिसकी वजह से कुछ बॉडी के पार्ट्स उनके व्हाइट पैचेस जैसे नजर आते हैं, एंड दैट इज विटिलिगो। एंड इफ आई टॉक अबाउट एल्बिनिज्म, सो दैट इज द कंप्लीट लॉस ऑफ पिगमेंटेशन, यानी कि उनकी पूरी बॉडी में कोई मेलानिन पिगमेंट नहीं होता, देयर इज नो पिगमेंट इन देयर बॉडी, ड्यू टू विच द कलर ऑफ देयर एंटायर बॉडी इज व्हाइट और फेयर, एंड दैट इज एल्बिनिज्म। अगर ये चीज पैचेस में हो बॉडी में, राइट, पिगमेंट लॉस, तो उसे विटिलिगो बोलेंगे, और अगर कंप्लीट हो पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द सरफेस ऑफ द बॉडी, तो उसे हम एल्बिनिज्म बोलेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस वाज ऑल अबाउट आउटर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के बाद नीचे अगर आप गौर से देखेंगे स्किन के डायग्राम में, तो एक थिक लेयर है विच इज डर्मिस, राइट। डर्मिस इज मल्टी लेयर्ड, एंड ये बहुत सारे सेल की वजह से काफी थिक लेयर होता है, और इसी लेयर के अंदर आप देख सकते हैं डायग्राम में, यू कैन सी द स्वेट ग्लैंड, राइट। स्वेट ग्लैंड्स वो होती हैं जो स्वेट बनाती है, तो आपको स्किन से जो स्वेट आता है दैट इज ड्यू टू द स्वेट ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड इन द डर्मिस रीजन। इसी के बाद आपको वहाँ पे हेयर फॉलिकल भी नजर आएगा, तो हेयर फॉलिकल का जो रूट वाला पार्ट होता है, लास्ट वाला पार्ट, दैट इज ऑल्सो एम्बेडेड इन द डर्मिस, और उसी के बेस से लगा होता है ऑयल ग्लैंड, यानी कि सेबेशियस ग्लैंड, राइट, जो कॉन्स्टेंटली ऑयल भी सिक्रीट करती है, राइट। काफी लोगों की स्किन काफी ऑयली होती है ड्यू टू द एक्सेस सिक्रीशन ऑफ द ऑयल फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड। इसी के साथ इसी पर्टिकुलर रीजन में काफी सारी ब्लड कैपिलरीज भी आती है, यू कैन सी दिस रेड एंड ब्लू लाइंस, दीज आर ब्लड वेसल्स, ब्लड कैपिलरीज, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट इसी लेयर में काफी सारा फैट भी डिपॉजिटेड होता है, ठीक है, एंड फैट इज एक्टिंग लाइक अ रिजर्व फूड मटेरियल इन योर बॉडी, राइट। सो अगर मैं इनर डर्मिस की बात करूं, सो इट इज वेरी थिक लेयर, राइट, एंड इट इज सिचुएटेड बिलो एपिडर्मिस, और ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, and it contains blood vessels, blood capillaries, lymphatic vessels, hair follicle, sweat gland, oil gland, that means sebaceous gland, और यहाँ पे nerve endings भी आती हैं। nerve endings आने की वजह से इसी एरिया में हमें टच और पेन का सेंसेशन भी होता है, राइट। जब आपकी स्किन को कोई टच करता है तो आपको पता चल जाता है, दैट इज ड्यू टू द न्यूरॉन्स एंडिंग विच आर कमिंग इन दैट पार्ट, एंड जब आपको कोई पिंच करता है तो भी आपको पेन का सेंसेशन होता है, दैट इज अगेन ड्यू टू दी नर्व एंडिंग विच आर फाउंड इन दी इनर डर्मिस। एंड अगर आप ध्यान से ये वाला डायग्राम देखेंगे, सो हियर यू कैन सी दीज पैपिलाज, राइट, ये जो आपको फोल्डिंग्स नजर आ रही हैं डर्मिस वाली लेयर में, राइट। सो इसे हम क्या बुलाते हैं? इसे हम पैपिलाज बुलाते हैं, ओके। और इसके नीचे सारे स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड, ब्लड कैपिलरीज, लिम्फ कैपिलरीज,
एक्सेट्राज आर फाउंड। ठीक है, स्किन के एग्जैक्ट नीचे आप देखोगे तो एक फैट का थिक लेयर होता है। ठीक है, फैट का थिक लेयर का काम क्या होता है? तो सबसे पहले तो वो फूड रिजर्व करता है, फूड मटेरियल का रिजर्वॉयर है वो। और सेकंड, ये हीट को बाहर नहीं जाने देता, यानी कि हमारी बॉडी को गर्म रखता है, बॉडी की हीट को लॉस होने नहीं देता, जो कि हमें विंटर्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये जो आप ब्लड कैपिलरीज यहाँ पे देख रहे हैं, ये ब्लड कैपिलरीज का काम क्या होता है? तो ये हमारी स्किन को ब्लड सप्लाई करता है। इसके साथ साथ ऑक्सीजन और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि फूड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, वो सब ब्लड कैपिलरीज प्रोवाइड करती हैं। And in return they takes the waste also, they collects the waste also from the skin. Okay, so we have already talked about the structure of skin, right? In that we have seen that the structure of the skin is divided into two parts: outer epidermis and inner dermis. Outer is further divided into three layers, which is cornified, granular and malphizian. उसमें से जो कॉर्निफाइड लेयर थी, फर्स्ट वाली आउटर मोस्ट, उसका जो थिकनेस है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में वैरी करता है। जैसे कि अगर मैं हाथों के सोल की बात करूं या पैर के सोल की बात करूं, पाम की और सोल की बात करूं, तो वहां पर उसकी थिकनेस काफी ज्यादा होती है, राइट? वाई? बिकॉज ये वाली जो जगह है हम वो ग्रिप के लिए यूज करते हैं हम, राइट? तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉडी के कुछ पार्ट में जैसे पाम में और सोल में कॉर्निफाइड लेयर की जो थिकनेस है वो वेरी करती है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ द skin. So here you can see the different functions of the skin, right? I have already written. Firstly, you can see the surface area which is covered by our skin is 0.9 meter into 2.1 meter. Now the first function which is done or provided by your skin is protection. ये इसका prime function है, first and foremost important point है कि वो हमें protection provide करती है। तो किससे protection provide करती है? So first is against mechanical injury. मैकेनिकल इंजरी यानी कि जब हमें चोट आती है, राइट? तो सबसे पहले हमारे ऑर्गन्स डैमेज ना हो, हमारे अंदर के मसल्स, अंदर के टिश्यूज डैमेज ना हो, तो सबसे पहले स्किन उसे ओवरकम करती है, यानी कि हमारी स्किन हमें बचाती है चोट लगने से, राइट? तो मैकेनिकल इंजरी से वो हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड इज सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस है, दे आर वेरी हार्मफुल रेडिएशंस, राइट? तो सन की वो हार्मफुल रेडिएशंस को हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता, स्किन वहीं पे रोक लेता है। ठीक है, बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं होने देता। सो स्किन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑफ द सन। देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स, यानी कि जर्म्स को भी रोकता है, अंदर जाने नहीं देता। इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ जर्म्स इनसाइड योर बॉडी। सेकेंड फंक्शन ऑफ द स्किन इज टेम्परेचर रेगुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन टेम्परेचर को भी रेगुलेट करती है। किस तरीके से? तो आपको पता ही है, जब गर्मी होती है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो स्वेटिंग होता है, तो वो आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है टू गिव यू अ कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके से आपकी बॉडी अलग अलग सीजन्स में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की ट्राई करता है। थर्ड इज परसीव चेंजेस इन द सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी चेंजेस होते हैं वो हमारी स्किन परसीव करता है, यानी कि रिसीव करता है वो मैसेज और आपको बताता है। जैसे कि आपकी स्किन के अंदर काफी सारे सेंस ऑर्गन्स हैं जो टेम्परेचर के चेंज को सेंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ टच, अगर आपको कोई टच करता है तो आपकी स्किन उसे भी पता लगा देती है, राइट? सो टच सेंसिटिव है। एंड लास्ट पेन, बिकॉज यहाँ पे नर्व्स एंडिंग आती हैं तो वो पेन को भी डिटेक्ट करता है, परसीव करता है और आपको इन्फॉर्म करता है कि भाई इस पर्टिकुलर पार्ट में पेन हो रहा है। फोर्थ फंक्शन इज सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। आपकी स्किन विटामिन डी बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपने सुना है कि सन से हमें विटामिन डी मिलता है, बट सिर्फ सन से नहीं, सन की प्रेजेंस में आपकी स्किन विटामिन डी खुद बनाती है। ठीक है, इसके बाद है फिफ्थ फंक्शन विच इज एक्सक्रीशन। आपकी स्किन काफी सारी चीजें जो वेस्ट है उसे थ्रो करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग अगेन। ठीक है, स्वेटिंग को ही हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में पर्सपिरेशन कहते हैं, पर्सपिरेशन, राइट? जिसके अंदर, स्वेटिंग के अंदर वाटर और सॉल्ट का लॉस होता है। बॉडी के अंदर अगर एक्सेस वाटर है, एक्सेस आयंस, सॉल्ट है, तो स्वेटिंग की तरीके से ही वो बॉडी से बाहर
लॉस होते हैं और इसे हम एक्सक्रीशन के अंदर इंक्लूड करते हैं। वैसे तो एक्सक्रीशन में मेन रोल किडनीज का है, ठीक है, ब्लड फिल्ट्रेशन का, बट थोड़ा बहुत हाथ आपकी स्किन का भी है। 6 point food storage, right? So your skin also stores food and that food is nothing but your fat, right? चमड़ी के अंदर जो बहुत सारा फैट जमा होता है, राइट, चर्बी जिसे कहते हैं, वो एक्चुअली आपका बॉडी का रिजर्व फूड मटेरियल होता है जो आपकी बॉडी इमरजेंसी कंडीशंस में यूज करती है। इमरजेंसी कंडीशंस मतलब यानी कि जिस दिन आपने कुछ नहीं खाया, यू आर अंडर स्टारवेशन, यू आर फास्टिंग, तो उस वक्त आपकी बॉडी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, राइट? तो तब ये स्टोर किया हुआ फैट आपकी बॉडी यूज करेगी, राइट, द फैट विच इज स्टोर्ड अंडरनीथ योर स्किन, और उसे यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। एंड लास्ट इज इन ग्रिपिंग, राइट? आपकी स्किन आप देख सकते हो फिंगर्स में किस तरीके से प्रॉपरली ग्रूव्स हैं, ठीक है, पाम में, ठीक है। सो ये जो रिजेस और ग्रूव्स हैं फिंगर्स में, पाम में, सो ये ग्रिपिंग के लिए प्रॉपर एक एफिशिएंट रहता है, जिससे हम कोई भी चीज़ को अच्छे से पकड़ सकते हैं और हमें चलने में, वॉकिंग में भी हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ योर स्किन. So this was part 1 of chapter number 15, that is structure and functions of the skin. I hope you like this video. So please stay tuned and do not forget to like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon. Thank you so much.